हेलो एवरीवन, वेलकम टू शून्य आईएएस एंड वेलकम टू दिस लेक्चर. मेरा नाम लावण्या है एंड टुडे इन इंडियन इकोनॉमी फॉर GS3 we are going to discuss a topic which is very important, pretty easy also, but a very feared topic. A topic जिसको देख के बच्चों को ऐसे लगता है कि ये क्या ही है and why do we have to study such a complicated topic. As you can see on your screen, it is the Insolvency and Bankruptcy Code. Now when we talk about Insolvency and Bankruptcy Code, सब कुछ साइड में हटा दो, सब कुछ. Just see the words. What do the words over here mean? IBC, Insolvency and Bankruptcy. See, insolvency basically means when you stop being a solvent, when you stop having that much amount of money which will help you sustain your business. And bankruptcy, wherein when does a company file bankruptcy? When it is devoid of funds, it is unable to pay back its loans and it has lost the capacity to recover those loans through its operations. है ना. मान लीजिए किसी ने एक कंपनी चलाई, एयरलाइंस. अभी रिसेंटली एक एयरलाइंस ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, नाम नहीं लूंगी मैं. बट बैंक्रप्ट क्यों हुए? बिकॉज नॉट जस्ट कि लॉसेस में चल रहे हैं. लॉसेस में तो बहुत कंपनीज चलते हैं आज की डेट में. बड़ी से बड़ी कंपनी देखिए आप, द यूनिकॉर्न्स, दे आर ऑपरेटिंग इन लॉसेस. सो loss making company is not a bankrupt company. Bankrupt company basically means that it has lost the capacity to pay back the debt in future because it has lost the capacity to generate revenue, and that is why it files for bankruptcy ki okay, this is the situation, we will not be able to gain profit, we will not be able to gain much revenue, we have taken this much loan and now tell us with our existing assets, ये हमारे पास सामान है, इतने एयरक्राफ्ट्स हैं, इतना सब कुछ है, now tell us what should we do. ये है बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी. अब इसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए IBC कोड बनाया गया है, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. अ वेरी सिंपल थिंग इज कि बैंक्स आर द लाइफलाइन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एनी कंट्री. Not just India, any country. Banks are the lifeline of financial system. क्या काम होता है बैंक्स का? डिपॉजिट्स लेना, लोन्स देना, डिपॉजिट्स लेना, लोन्स देना. That's the work. They can do it in multiple ways. When banks give corporate loans to these companies, what happens is that sometimes these companies are not able to pay back. And if this becomes a regular trend कि कंपनीज जो हैं वो पैसा ले रही हैं और वापस नहीं कर रही हैं, banks will become unsustainable. And more than unsustainable, banks will lose the credibility that they have, that they enjoy. आज की डेट में आप अपनी सैलरी का पैसा, अपनी सेविंग्स का पैसा, अपने फ्यूचर प्लान्स का पैसा, हर चीज का पैसा यू कीप इन बैंक्स. व्हाई? बिकॉज देयर इज क्रेडिबिलिटी. इफ टुमारो यू सी अ ट्रेंड कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं लोन लेकर के भाग जा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस योर डिपॉजिट्स इन द बैंक्स आर बीइंग यूज्ड टू पे फॉर द पीपल्स सैलरीज, टू पे फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द बैंक्स, एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू गेट व्हाट इज ड्यू टू यू. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बैंक में पैसा रखना आप बंद कर देंगे. So to maintain the overall health of the Indian economy in the year 2016, when non-performing assets were increasing and increasing to a very, very large extent, and the existing initiatives क्या थे उस समय? सरफेजी एक्ट. सरफेजी एक्ट के अंडर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, this debt recovery tribunal was there, कि जितना भी डेट लिया है कंपनीज ने वो रिकवर कैसे किया जाए. और कैसे किया जा सकता है रिकवर? यू गिव सम प्रेशर टू द कंपनी कि इतना रेवेन्यू लाओ, इतना रेवेन्यू लाओ, और यू सेल द एसेट्स दैट द कंपनी हैज. यही कर सकते हो ना, यही दो चीजें हैं.
तो यही दो तरीके हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इंप्लीमेंट करने के, कि आइदर देयर इज रेजोल्यूशन, resolution means that the company will keep functioning and you do some kind of, maybe you infuse some more money, you give some very strict targets कि भाई इतने टाइम में अगर इतना रेवेन्यू नहीं आया तो हम तुम्हारी कंपनी बेच देंगे और बेच के जो भी रिटर्न आएगा वो हम लेकर के चले जाएंगे, है ना। और इस डर से द कंपनी स्टार्ट्स परफॉर्मिंग, दिस इज रेजोल्यूशन। The other option when the company becomes completely unviable is your liquidation, कि कुछ नहीं हो सकता इस कंपनी का, जितना एसेट है थोड़ा बहुत इनके पास, सेल ऑफ द एसेट, गेट द मनी एंड गो योर सेपरेट वेज। ये दो ही तरीके हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, एंड दीज टू कैन बी डन। तो ये एक बैकग्राउंड वर्क है, और ये जो कोड है इस पर आपको 10 मार्कर क्या 15 मार्कर भी आ सकता है अलग से, only on this code. Why? Because in an economy which is increasingly privatizing, which is increasingly going towards the PPP model, which is increasingly encouraging the corporate sector, that kind of confidence is very important in the economy कि हाँ भाई अगर corporate sector ने लोन लिया है, क्योंकि banks भी तो private है ना, अगर corporate sector ने banks से लोन लिया है, corporate sector is reliable and it will pay back your loan one way or the other, and that is why IBC का अच्छे से वर्क करना is very very important। ठीक है, अब before moving forward to the problems, to the challenges, to the way forward, all of that, आपको as a UPSC aspirant as well as a aware citizen, है ना, आपको पता होना चाहिए कि आईबीसी कोड फंक्शन कैसे करता है। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आईबीसी कोड, हाउ डज इट फंक्शन, व्हाट आर द स्टेप्स। द वेरी फर्स्ट, और ये चीज आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स में भी काम आएगी, सो मेक श्योर दैट यू हैव ऑल योर ब्रेन्स ओवर हियर। सबसे पहली बात, द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस। व्हाट इज द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस, कि मैंने इस कंपनी एक्स को, एक्स तो चलो सच में एक कंपनी है, दैट इज ट्विटर, बट लेट्स से एक एबीसी कंपनी जो भी है, मैंने इसको लोन दिया था, दिस कंपनी इज नॉट गिविंग मी द इंटरेस्ट, आई एम द बैंक एंड सो बेसिकली आई एम द क्रेडिटर टू दिस कंपनी, सो आई कैन टेक द केस फॉर insolvency and bankruptcy under the IBC code. So I can initiate the resolution. Or at the same time, even the ABC company can initiate the resolution. यानी debtor, यानी जिसने उधार लिया है, या creditor, दोनों ही IBC में resolution initiate कर सकते हैं। तो ये आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगी चीज, कि दोनों ही कर सकते हैं। प्रीलिम्स में आपको एक स्टेटमेंट आ सकता है कि ओनली द क्रेडिटर कैन इनिशिएट दिस काइंड ऑफ अ रेजोल्यूशन। नो, जिसने उधार लिया है वो भी बोल सकता है कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, आई एम गोइंग टू नाउ आईबीसी रेजोल्यूशन। ठीक है, देन स्टार्ट्स अ प्रोसेस विच इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। The corporate insolvency resolution process, this is under the section 6, और ये जो छोटी डिटेल्स होती है section 6 of insolvency and bankruptcy code, ये जो छोटी डिटेल्स होती हैं मोस्टली लोग मिस आउट कर जाते हैं कि अच्छा क्या लिखना है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। नहीं, आप लिखोगे कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट होता है, सिर्फ तभी इनिशिएट होगा जब द IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इसको अप्रूव कर दे कि यस दिस पर्टिकुलर केस विल बी टेकन, दिस इज अ वायबल केस। ठीक है, अगर तो IBBI की भी क्या बात करूं, अगर तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो IBC के अंडर ही क्रिएट होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, तो कंपनी अगर लेकर के जाती है, इवन अगर डेटर भी लेकर के जाते हैं, क्रेडिटर भी लेकर के जाते हैं, तो
एंड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो विद इन मैक्सिमम 30 डेज, वैसे 14 डेज का टाइमलाइन है, 14 डेज और मैक्सिमम 30 डेज के अंदर अंदर एडमिट कर लेगा कि क्या इस केस को हमें एडमिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ठीक है. देन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. उसके बाद यह जानना जरूरी है कि कितनी बड़ी कंपनी जा सकती है अपनी कंप्लेंट लेके, है ना. मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपए का लोन लिया हुआ है, टेकन अ लोन फॉर 10,000 एंड द बैंक ड्रैग्स यू टू द NCLAT कि भाई योर कंपनी हैज टेकन 10,000 लोन. इज इट पॉसिबल? नो. Because earlier the limit, the minimum amount of default used to be rupees 1 lakh. The minimum amount 1 लाख से कम का अगर डिफॉल्ट है तो आप ये CIRP इनिशिएट नहीं कर सकते हैं. That is one. After the COVID and during the COVID pandemic, इतनी सारी कंपनीज जो हैं वो नॉन वायबल हो गई, वो अपना डेट देने में संपूर्ण नहीं रही कि इस लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया. सो आज की डेट में अगर 1 करोड़ से कम का कोई डिफॉल्ट है वो आप CIRP के अंडर इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, IBC के अंडर इनिशिएट नहीं कर सकते हैं. ठीक है. आप केस लेके जाएंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, 14 डेज के अंदर या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा. एंड इफ it is accepted, let's say national company law tribunal accepts it, ये बोला गया है कि पूरा प्रोसेस यानी एक्सेप्टेंस से लेकर के रेजोल्यूशन तक या फिर लिक्विडेशन तक शुड नॉट टेक मोर देन 330 डेज. यानी विद इन अ ईयर दिस एंटायर प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड. ठीक है. लेस देन अ ईयर दिस एंटायर प्रोसेस. तो या तो कंपनी से आप पैसा वापस निकलवाइए और यू सेल ऑफ द एसेट्स एंड मूव फॉरवर्ड. फाइन, दैट इज देयर. ये मैंडेटरी डेडलाइन हो गई. ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है कि कितने डेज मैक्सिमम हो सकते हैं, इस तरीके के सवाल पूछ लेते हैं. आफ्टर द एक्सेप्टेंस बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. हु इज द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स? जिन्होंने पैसे दिए हैं. इट्स अ ग्रुप ऑफ बैंक्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव गिवन मनी टू दैट पर्टिकुलर कंपनी जो बैंकरप्ट अप हो चुकी है. ठीक है. तो ये सारे लोग, एंड नॉट नेसेसरीली कि ये सारे कनेक्टेड होंगे आपस में, बट जैसे होता है ना कि सीरीज ए फंडिंग उठाया, सीरीज बी फंडिंग, सीरीज सी फंडिंग, डेट उठाया, लोन उठाया, तो सारे क्रेडिटर्स साथ में आएंगे. दे विल फॉर्म अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स and they will start the resolution process. This is how it goes. जो भी resolution process का proposal दिया जाएगा, 66% of the committee of creditors has to agree to it. 66% यानी two-third of the committee of creditors has to agree to the process. यानी 100% people do not have to agree, बट 1/3 भी नहीं है, हाफ से ज्यादा है, 100% नहीं है, 66% हैव टू अग्री. एंड दैट इज हाउ द रेजोल्यूशन इज डन. अगर 66% अग्री नहीं करते हैं तो फिर वापस से एक प्रपोजल क्रिएट किया जाएगा. और ये प्रपोजल कौन क्रिएट करते हैं? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कौन ये डिसाइड करेगा कि कंपनी के एसेट्स बेचे जाने हैं या फिर क्या करना है. दीज आर कॉल्ड द insolvency the resolution experts. ठीक है. they are the professionals, insolvency resolution professionals, IRPs. ठीक है. अब ये IRPs कौन होते हैं? they can be CAs, they can even be corporate lawyers, they can be people who are aware about finances, है ना, क्योंकि ultimately it's about money. तो अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशनल को लाएंगे जो ये असेस नहीं कर सकते कि फ्यूचर में ये कंपनी कितने रिटर्न्स आपको देगी, देन देयर इज नो पॉइंट. सो यू अपॉइंट अ CA, यू अपॉइंट अ कॉर्पोरेट लॉयर, व्हाटएवर. दिस इज द प्रोसेस. नाउ लेट्स कम टू द रियल पॉइंट. रियल पॉइंट ये है कि आपसे कभी भी प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला जाएगा इन योर मेंस आंसर.
और यहां पे लोग मार खा जाते हैं क्योंकि लोगों को ये पता है कि प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला जाएगा, तो प्रोसेस पढ़ते ही नहीं है ना। बट अब आपने प्रोसेस समझ लिया है कैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के अंदर रेजोल्यूशन होता है, एंड नाउ यू विल सी कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रोसेस ही नहीं पता होगा तो हाउ विल यू सजेस्ट सॉल्यूशंस? So UPSC is about hard work, yes. It is also about smart work, but it is not about being over smart. Please understand, there is a difference between smart work and being over smart. IBC resolution के बारे में ना पढ़ना is being over smart and eventually being stupid. ठीक है? Okay. So the problems. Currently आईबीसी में क्या प्रॉब्लम्स हैं? बिकॉज वट एवर वी आर स्टडिंग, हम उन चीजों के बारे में पढ़ते ही नहीं है जो अपने आप में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। हम उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं या वही चीजें न्यूज में रहती हैं विच आर नॉट परफॉर्मिंग राइटली, ठीक है, विच आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो आईबीसी इज क्लियरली नॉट परफॉर्मिंग वेल। बात यह है कि सबसे पहली बात तो मैंने आपको बोला कि विद इन 14 days The National Company Law Tribunal has to decide कि क्या मुझे इस केस को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। However, 71% of cases, 71 is a huge number, 71% of cases have been pending with the National Company Law Tribunal for about 180 days. कहां 14 दिन में ये अप्रूवल आता है और कहां 180 डेज। सो 180 डेज से भी ज्यादा अगर पेंडेंसी है तो 180 डेज पे एड ऑन कर दो 330 और डेज, वो भी पूरे होंगे नहीं होंगे कुछ नहीं पता। सो दैट मींस इनऑर्डिनेट डिले, इनऑर्डिनेट डिले, ठीक है। तो ये तो एक नेगेटिव स्टेटिस्टिक हो गया। हाउएवर, जस्ट द फैक्ट कि 2016 में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया, it has increased the confidence of the investors in Indian market. इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडियन मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया दैट यस, if my company takes a loan, if I'm not able to pay back, I will not be left to starve on the roads. I will not be I will not be jailed unnecessarily. I will just be through a process of resolution. That is, मुझे भागना नहीं पड़ेगा इधर उधर। So as a result of this, जो हमारा 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंक था 2014 में, वो था 142, ठीक है, 142 was the rank. Cut to, we have come to 2019. 2019 में जो ये रैंक था, just 3 years after the insolvency and bankruptcy code, it improved to 63. That means we climbed up a very huge ladder. Now, of course, it is not just because of the insolvency and bankruptcy code, but it has a part to play in it. Definitely, it has a part to play in it. ठीक, अब recently insolvency and bankruptcy code amendment bill आया है और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई है। इसमें बात ये बताई गई है कि प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन किया जाए। नाउ व्हाट इज प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन? एक तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, दैट इज कर्प। हियर इज पर्प, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। इट इज फॉर द स्मॉलर कंपनीज। होता क्या है ना कि मान लो यू हैव अ वेरी स्मॉल डेट, 1 लाख से नीचे का तो आप कर ही नहीं सकते हो। अगर आपका बहुत स्मॉल डेट है तो आप जो है एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ले सकते हैं। यू कैन मेक एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ गेटिंग द इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एक्सपर्ट्स हैं उनके भी एफर्ट्स बचेंगे, है ना। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के ओवरऑल एफर्ट्स बचेंगे कि इसको पर्प के अंदर डालो, इसको पर्प के अंदर डालो, एंड इट विल बी ओवरऑल अ स्मूथ पैसेज, जिसे कहते हैं ना ऑटोमेट कर दिया कि सिमिलर टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स हैं उनको
प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन दे दिया जाएगा। मान लो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी क्या हो सकता है कि आपके 30% एसेट्स को हम बेच देंगे बेस्ट कॉस्ट पे, आपके पास 70% एसेट्स बचेंगे, इन 70% एसेट्स पे वी वांट अ रिटर्न ऑफ दिस मच इन दिस मच टाइम। ये एक सेट टाइप ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो दैट इज देयर, ये बहुत अच्छी बात हुई है। देन अगर ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन चाहिए तो एज बिफोर 66% of financial creditors means which have helped you with the money, 66% of financial creditors will have to agree to this resolution, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है and this means that the collective voices of the creditors will be taken into account. ये वाला जो प्रोसेस है द पर्प प्रोसेस, इसका मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट जो है दैट विल बी ₹1 लाख। minimum resolution amount would be ₹1 lakh and overall किस तरीके के डेटर्स, किस तरीके के लोग जो हैं they will be eligible for this pre-packaged insolvency resolution. It will be the companies who are registered under the MSME Act. यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे नहीं कर सकते कि we'll go and we'll just have a pre-packaged insolvency resolution process. It has to be a company that is registered under MSME Development Act 2006. ठीक है, इतना डिटेल आपको लिखना नहीं है पर आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली ये हुआ है। नाउ ये तो हो गई कि अभी क्या चीजें हैं। नाउ आईबीसी में there are multiple challenges and these challenges you need to understand very very well. देखो, सबसे पहली बात यह है कि आईबीसी का कभी भी गोल ये होना ही नहीं चाहिए, the goal should never be that the company shuts down. Okay, the company shutdown should be last, it should be the last way out. If nothing else is working, the company shuts down. But the fact is that in about 30% of the cases, to be very precise with you, in about 29.7% cases, there has been liquidation of the business. मतलब मोटा मोटा मान के चलो तो 1/3 of the cases में आपकी कंपनी बंद हो जाती है, उसके एसेट्स को बेच करके हम आगे बढ़ जाते हैं. So that means the company, the atmosphere for the company can be much better, है ना. The resolution process can be much better. ठीक है. दूसरी चीज, देर इज लो रिकवरी हाई लिक्विडेशन, ये वाली तो बात हो ही गई. देर इज टाइम डिलेज, जिसमें मैंने आपको बताया कि 180 डेज तक 70% केसेस आर पेंडिंग विद द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एंड इवन आफ्टर द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, व्हेन द एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट्स, इवन दैट क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड ऑफ 330 डेज. ठीक है, even that crosses the threshold of 330 days. Okay, a very big problem which even our finance minister admitted, our finance minister Nirmala Sitharaman ma'am, she has admitted कि IBC में एक बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि the creditors, जिन्होंने उधार दिया है, जिन्होंने लोन दिया है, they are being subject to haircuts. haircuts मतलब कि जितना आपने लोन दिया है, मान लीजिए आपने 100 रुपए का लोन दिया है, अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ दैट लोन, यानी 100 में से 80 रुपए आपको फोरगो करने पड़ रहे हैं. आपने 100 रुपए का लोन दिया था, यू वर एक्सपेक्टिंग दैट 110 वुड कम बैक टू यू. इन रियलिटी, my dear, only 20 is coming back to you because 80% haircut you are taking, which is a very very high rate. This is not resolution, this is compromise. ठीक है, अगर 80% haircut हो रहा है, haircut means कि आपको, आपने 100 का दिया था, आपको कितना उसमें से मिल रहा है, तो 80% आपका कट गया, 20% मिल रहा है. This is not a resolution and this will not have a healthy effect on the overall economy.
सो ये अनसस्टेनेबल है, एंड दिस इज नॉट जस्ट द कमेंटेटर्स विच हैव सेड दिस इज इवन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हैज राइटली एडमिटेड कि इतने हेयर कट्स सही नहीं है. सो जब भी आईबीसी पे सवाल आए, मेक श्योर दैट यू राइट that it is massive haircuts that are happening and that is creating a problem. ठीक है. Then overall the resolution professionals, the insolvency resolution professionals, IRPs, इनकी भी कमी है क्योंकि स्पेशलाइजेशन नहीं है, है ना. अगर मैं बात करूं IRPs की तो कहीं पर भी ये चीज सिखाई नहीं जाती है. इवन व्हेन यू टॉक अबाउट CAs, इवन व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट लॉ एक्सेट्रा, कि किस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं. सो दैट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम कि प्रोफेशनल्स ही नहीं है, और क्योंकि प्रोफेशनल्स नहीं है उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि 80% हेयर कट लेना पड़ रहा है क्रेडिटर्स को, है ना. Poor infrastructure is there, operational imbalance, these are some of the overall issues, but these are the broader issues. और सबसे बड़ा इशू टाइम डिलेस का है, हेयर कट्स का है. Primarily it is about the number of complaints that are coming to you and how well you are able to resolve those complaints, and each complaint how well are you able to justify it to the creditor कि भैया आपने इतना लोन दिया था इनको, हमारे रेजोल्यूशन के बाद देखो आपको इतना लोन वापस मिल गया है. अल्टीमेटली बात इसी पे आती है. नाउ of course we have discussed the challenges of the insolvency and bankruptcy code. इसके हमें सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करने हैं, इसके हमें वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट करने हैं. देखो फाइनेंशियल सिस्टम का, फिस्कल सिस्टम नहीं बोल रही मैं, फिस्कल सिस्टम के माई बाप कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर. बट द फाइनेंशियल सिस्टम, द मॉनेटरी सिस्टम, द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, उनके माई बाप कौन है? उनके माई बाप हैं द RBI. सो RBI हैज टू कम इनटू द पिक्चर, है ना. RBI has to be made more powerful. RBI has to have a greater say when it comes to the insolvency and bankruptcy code, because RBI is a body of the experts who are experts in finance, who have been dealing with non-performing assets. So अगर company resolution की बात है, RBI should be taken into consideration. ठीक है. उसके अलावा of course maximum 330 days है, वैसे 180 डेज में बोला गया है कि 180 डेज में यू हैव टू सॉर्ट दिस आउट. ठीक है, 180 डेज में यू हैव टू सॉर्ट दिस एंटायर रेजोल्यूशन प्रोसेस. इंफ्रास्ट्रक्चर क्रंच जो है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रंच में प्राइमरीली आता है आपका द प्रोफेशनल्स, द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स. वो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इस पूरे, बट ओवरऑल द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट नॉट. Inter-agency cooperation is required. So when you are resolving big cases, जैसे मान लो वीडियोकॉन का केस था, ठीक है, तो वीडियोकॉन के केस में 95.3% हेयर कट लिया है क्रेडिटर्स ने. 95.3%, तो इतनी सी रिकवरी हुई है उनकी, राइट. सो द पॉइंट इज दैट वट एवर you are going forward with, you need inter-agency cooperation. Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Finance, the RBI, even the Ministry of External Affairs, if it is needed when it comes to external companies or let's say an external branch of a domestic company, you need to break the interdepartmental silos. और तभी, क्योंकि Ministry of Corporate Affairs से अगर आपका Ministry of Finance का बातचीत नहीं होगी तो यू विल नॉट बी एबल टू असेस कि अच्छा ठीक है इस कंपनी का ये रिकॉर्ड रहा है, फ्यूचर में ये कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फाइन. अकाउंट अपग्रेडेशन, दिस इज अ वेरी यूनिक सोल्यूशन. इसका ये मतलब है कि वंस द रेजोल्यूशन इज देयर, तो आप उस कंपनी के ऊपर से ये जो इंसॉल्वेंट होने का धब्बा है वो निकाल दें, सो दैट द कस्टमर कॉन्फिडेंस कैन बी रीबिल्ट अगेन, है ना. जैसे क्या होता है कि when a person commits a crime,
चाहे वो पूरी जेल की सजा काट के आ जाएं, द पर्सन स्टिल रिमेन्स अ क्रिमिनल इन द आईज ऑफ द सोसाइटी, राइट? सिमिलरली अगर एक बार एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, और इंसॉल्वेंट होना तो कोई क्राइम भी नहीं है ना? यू स्टार्ट अ बिजनेस, इट माइट बी प्रॉफिटेबल, इट माइट नॉट बी प्रॉफिटेबल, इट्स नॉट अ क्राइम. So once the resolution process has happened, you make sure कि आप उनका अकाउंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का अकाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जो उनका अकाउंट है, जो ओवरऑल उनका एक मार्केट वैल्यू है, उसको वापस से अपग्रेड करें, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी हमेशा ज्यादा सेल करती है. इट सेल्स मोर द नेगेटिव पब्लिसिटी, बट द पॉजिटिव वर्ड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू स्प्रेड, राइट? दैट इज देयर. There has to be an empowered committee, and it should not just be having the committee of creditors. The empowered committee should have all the stakeholders. So for example, it is very easy for the committee of creditors who have given a loan from a distance, है ना, वो daily affairs में तो नहीं है involved, एक डिस्टेंस से उन्होंने कुछ लोन दिया है. इट इज वेरी इजी फॉर देम टू से कि भाई ओके लिक्विडेट द कंपनी, बट व्हेन यू लिक्विडेट द कंपनी यू आल्सो इंड्योर जॉब लॉसेस, डोंट यू? जब आपने कंपनी बंद कर दी, सब कुछ बेच बाच के आप चले गए, तो आप लोगों की नौकरियां भी खा के चले गए हैं. एंड दैट इज व्हाई यू नीड empowered committee with all the stakeholders that will be impacted by the resolution process, because that will make it a democratic process. It's not just, and that is one of the criticisms actually, ki committee of creditors has disproportionate say on what is to be done in terms of the resolution process or the liquidation process, but the stakeholders, the founder, the CEO, the employees, and even some aspects of the consumers, maybe that particular company is selling a product which is so essential to the society कि चाहे वो लॉस मेकिंग भी है, चाहे बैंकरप्ट भी हो गई है, that product has to keep running in the society, maybe. तो you even need a set of consumers as stakeholders कि भैया साथ में आके बैठो और देखो इस कंपनी की सोसाइटी में क्या वैल्यू है, राइट? दैट इज देयर. Then parliamentary standing committee has made some recommendations. सबसे पहली बात तो recommendations में ये आता है कि कितना हेयर कट हम बर्दाश्त कर सकते हैं. अभी जैसे मैंने आपको बताया, मोर देन 90% हेयर कट हैज बीन गिवन इन द वीडियोकॉन केस, है ना, कि आपने 100 रुपए लोन में दिया था, उसमें से 10 ही रुपए वापस आ रहा है, 10 भी नहीं आ रहा है. तो एक कंपेरेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेयर कट होना चाहिए कि इससे ज्यादा हेयर कट नहीं होगा. दैट मीन्स द क्रेडिटर्स वोंट सफर अ लॉस विच वुड बी मोर देन दिस पर्टिकुलर नंबर. इट कैन बी 30%, 40%, कि 40% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए. यानी कि अगर 100 दिया है तो 60 तो वापस आएगा ही आएगा. ये मैंडेटरी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. ऐसा कुछ ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है, ठीक. देन इवन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिसको बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए. बिकॉज यू नो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कैन ऑल्सो बी बायस्ड. मे बी एक रेजोल्यूशन निकल रहा हो, बट देर इज सम एनमिटी between the committee of creditors and the people who are running the company, and the committee of creditors deliberately wants कि ये कंपनी बंद हो जाए, है ना. कंपनी चल सकती है बट सीओसी स्टिल वांट्स कि बंद हो जाए. तो सीओसी की न्यूट्रलिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है. देयर हैज टू बी अ कोड ऑफ कंडक्ट for the COC, because COC has disproportionate power in the IBC. ठीक है. एंड ओवरऑल जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, 14 डेज का टाइमलाइन अभी है, जो कि ऑफ कोर्स फॉलो नहीं हो रहा है वेरी क्लियरली. मैक्सिमम 30 डेज के अंदर द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल शुड बी एबल टू डिसाइड कि ये केस हमें एडमिट करना है या नहीं करना है. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप इस टॉपिक से अभी तक इसीलिए रिलेट नहीं कर पाते थे बिकॉज आपको ऐसा लगता था इट डजंट इम्पैक्ट यू. बट जस्ट थिंक अबाउट द कंपनीज विच यू आर यूजिंग ऑन अ डेली बेसिस,
है ना, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो सकती हैं, दे कैन बी ग्रोसरीज, दे कैन बी एनीथिंग. If the companies start shutting down one after the other and if there is no resolution for that, and on the other hand creditors के तरफ से सोचो कि if the banks keep on getting non-performing assets, if the non-performing assets keep on increasing, in both the scenarios there is a problematic situation. Hence the insolvency and bankruptcy code is to be deeply studied, is to be deeply reformed, and this particular code needs to be entrenched in the financial system of the country. Every company should know about it, every bank should know about it, so that losses can be minimized and gains can be maximized in the corporate culture. So that is all from my side for you today. I hope you derived some value out of this lecture, and I will see you all in the next lecture. Take care everyone. Thank you for watching the lecture.